method of teaching. So first of all, what is teaching? What do you understand by teaching? What is the definition of teaching? No one. Ujala, what? Ma'am, teaching is a practice. What practice? Ma'am, teaching is a practice by which we provide the education to the individual or students. Teaching is when the teaching is a practice, that is a practice teaching. I'm simply asking what is teaching. Ma'am, teaching is a method by which we can provide any information or knowledge to the individual. By which they are providing the any kind of information to the people. Okay. Or koi? Good. Kanupriya, what is teaching? Ma'am, teaching is the process in which we facilitate the learning and we provide the facts and knowledge. Basically, teaching is a process. Okay. And by this process, we are attending the people's need. Okay. On the basis of the need, we have to provide and we teach the or we facilitate the different kind of information to the people, right? Sometimes we teach the people regarding to sort out some problems. Sometimes we teach the people to know their own self. Okay, sometimes we teach people on the basis of the need of the people. Sometimes we teach the people for their growth and development. So basically, teaching actually Process. is a process. Okay, and that in which someone taught their ideas and their belief, and they taught by their experience, because we cannot say that teaching, because टीचिंग सिर्फ टीचर्स के थ्रू ही नहीं की जाती है. टीचर टीच कर रहा है इन प्रोफेशनली, बट इसके अलावा भी होते हैं बहुत से चीजें जो हम लाइफ में लर्न करते हैं, वो भी हमारी क्या है, किसी के थ्रू टीच किया जाता है हमें कि ये इस तरीके से करना है आपको. अंडरस्टूड. सो जनरली टीचिंग अगर हम कहें कि व्हेन समवन taught regarding their ideas, their belief, their knowledge, they share their knowledge and they provide a right direction to do some particular work, okay, to sort out the problems, or to sometimes they instruct regarding how to grow and develop and to maintain your personality in a society, so that you have to spend a standard life in a society, like being a social human is a social means social animal. तो सोसाइटी में अपने आप को किस तरीके से डेवलप करना है, कैसे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, क्या चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, ये सब हमें किससे मिलता है, टीचिंग से. तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच फैसिलिटेट द डिफरेंट काइंड ऑफ things which are needed for a particular, or which are needed for the individual community and the mass media. Okay. Who is a teacher? टीचर कौन है? मैंने कहा okay, who is a teacher? Ma'am, teacher is any person who provided the knowledge.
who can provide the knowledge. Provide the knowledge. Who have a mastery of that particular topic, a particular subject, right? Yes, ma'am. Who have an experience. Okay. So let's start the teaching method. So there are the different method of teaching. Okay, in that the lecture method. In the lecture method, demonstration, group discussion, seminar, symposium, panel discussion, role play, project, field trip, workshop. In the exhibition program instruction, computer assisted learning, micro teaching, problem based learning, self instruction module. Okay. So one by one we will discuss about the methods of teaching. ठीक है, यानी किस किस वे से हम टीच कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि टीचिंग हमें एक सिंपल वे से टीच नहीं करवाई जाती है. हर एक टॉपिक को जैसे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि हर एक फैक्ट जो इस वर्ड में प्रेजेंट जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो हम लर्न करते हैं और डिफरेंट वे से हम लर्न करते हैं उन फैक्ट्स को. सारे फैक्ट्स को हम सेम वे से लर्न नहीं कर सकते, इसलिए तो हम डिफरेंट प्रोग्राम में अपनी एडमिशन लेते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ज्वाइन करते हैं, राइट. अंडरस्टूड. जैसे मेडिकल पर्सन है तो वो उसका जो वे ऑफ लर्निंग है, जो टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है, दैट इज डिफरेंट rather than जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं या फिर जो कंप्यूटर फील्ड के हैं. ठीक है, तो हर एक की अपनी ओन इम्पोर्टेंस है. तो हर एक चीज को क्या करते हैं, हमें डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट वे से पर्टिकुलर फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टीच करते हैं. जैसे फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन. It is very common, especially common in a student, because group discussion is important and very helpful for the student to enhance our grasping power. Okay, it will help out before the examination also. आपने देखा होगा हम लोग एग्जाम से पहले ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, वी आर गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज. जो हम सेल्फ लर्निंग करते हैं, तो सेल्फ लर्निंग विल टेक मोर टाइम, बिकॉज फर्स्ट वी रीड देन वी अंडरस्टूड, और उसमें सिर्फ क्या हमारा ओन ब्रेन है, हमारे खुद के थॉट्स हैं, खुद के आइडियाज हैं. बट ग्रुप के डिस्कशन में क्या होता है, वी गेट अ डिफरेंट आइडियाज, तो ब्रेन की स्ट्रोमिंग होती है. समटाइम वी आर नॉट मीन्स agree with that particular fact, okay, and someone are agree with that particular fact, so that time we discuss and what is right, then we will follow this one. Okay, but self learning में क्या होता है, सेल्फ लर्निंग में हमारे ओन आइडियाज होते हैं. ठीक है, anyway, so group discussion introduction is the term group discussion stand for the discussion held within the group, यानी कि डिस्कशन जो ग्रुप में किया जाता है. एग्जाम्पल, interchange of ideas between the student. आपको कोई टॉपिक दिया गया है and then we all are discuss that particular topic. The teacher or among a group of the student, the teacher and the student are discuss about the particular topic. Okay. Organization procedure. So how will do this group discussion? Teacher is the leader of this group on the account of his status, function and responsibility. Usually 3 stages and step are there in the group discussion. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन को, तो इसमें जो टीचर होता है वो लीडर है. ठीक है, जो लीड करता है ग्रुप को एंड प्रोवाइड करता है. एक्चुअली लीड करने का मतलब है कि किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होना है, वो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि जिस टॉपिक को हम डिस्कशन कर रहे हैं विद इन अ टाइम पीरियड वो फिनिश हो जाना चाहिए. एवरी मेंबर शुड बी इन्वॉल्व इन द डिस्कशन. Okay, and we have to sort out the things or the facts. We have to understood the facts, and this is important.
तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑर्गेनाइजर की। जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस प्रोसीजर को, तो वो कौन है? टीचर है। तो वो क्या है? एज अ लीडर है, जो ऑर्गेनाइज कर एंड लीड कर रहा है। ठीक है। यूजुअली 3 स्टेज: state, function and the responsibility. Okay. The step up there are in the group in the discussion. जब भी हम group discussion करते हैं तो ये 3 steps क्या करते हैं? हम always follow करते हैं. Now planning, setting. Just wait. Planning and setting. Active, democratic and useful. Evaluating the outcome. ठीक है. तो हमने पहले पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में टीचर क्या करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में टीचर ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। क्या फंक्शन होने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की, सारी चीजें क्या करता है? उन सब चीजों को वो देख के प्रोसीजर यानी ग्रुप डिस्कशन का जो प्रोसीजर है किस तरीके से होना है उसे ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। इसलिए वो क्या है? एक लीडर है, वो लीड कर रहा है पूरे प्रोसेस को। कैसे कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या करता है? वो प्लानिंग करेगा। ठीक है, कि क्या क्या डिस्कशन करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन में कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। देन सेटिंग, डिस्कशन हमें कहाँ करना है, किस तरीके से, क्लासरूम डिस्कशन करना है या हमें पैनल काइंड ऑफ डिस्कशन करना है, मतलब किस तरीके से, मतलब कहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है। हो सकता है कि हम सेपरेट डिस्कशन करना चाहते हो रादर देन द इनसाइड ऑफ क्लासरूम। अंडरस्टूड। तो ये जितनी भी प्लानिंग फेज है यानी कि जहाँ पे हम प्लान करते हैं कि हमें डिस्कशन करना है, इस टॉपिक में करना है, इतने टाइम ड्यूरेशन तक डिस्कशन करनी है और उस डिस्कशन में हमें ये टॉपिक कवर अप करने हैं। ठीक है। और डिस्कशन के ड्यूरेशन में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होते हैं, बिकॉज जब डिस्कशन होता है तो बहुत से कन्फ्लिक्ट होते हैं, सम आर एग्री सम आर डिसएग्री। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट आते हैं, कि यूनिटी नहीं रहती है, जिससे क्या होता है? ना तो डाउट क्लेरिफाई हो पाते हैं और ना ही टॉपिक कंप्लीट हो पाता है और ना ही अंडरस्टूड हो पाता है। ठीक है। समटाइम ये करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो उन ये सारी चीजों को लीड करना एक काम किसका है? टीचर का है। तो उन सारी चीजों की प्लानिंग करता है कि किस तरीके से सबको इन्वॉल्व करना है मुझे। ठीक है। एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक एंड यूजफुल। सेकेंड है एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक। अब जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें कोई एक पर्सन डिस्कशन नहीं करता। अगर एक कोई टॉपिक में बात कर रहा है तो जो अनदर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो उसके रिगार्डिंग उससे डिस्कशन करते हैं। दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है। डिस्कशन करना मतलब अपने अपने व्यूज देते हैं कि वेदर दे आर एग्री विद दैट पर्टिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल the mother who are having a HIV positive, okay, who having a not HIV, हाँ ठीक है, मदर जो कि HIV पॉजिटिव है एंड हैविंग अ बेबी आल्सो, न्यूबॉर्न बेबी, तो वेदर शी विल फीड हर बेबी और नॉट। ठीक है। तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो टीचर ने कहा कि जो फीमेल जो क्या है HIV पॉजिटिव हैं उन्हें अपनी बेबी को फीड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देन वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट स्पीकर ने कहा कि हमें करवाना चाहिए। ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या होता है जो मदर का मिल्क होता है वो क्या होता है? फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो बेबी के इम्यूनिटी के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, बेबी के सर्वाइविंग के लिए दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। एंड ने कहा नहीं, ब्रेस्ट फीड हैविंग अ चांस टू स्प्रेड द HIV टू देयर बेबी, राइट। तो वो क्या है? डिसएग्री है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि हर एक पर्सन को इक्वल राइट होता है इसमें अपने व्यूज देने का। ठीक है। देन एट द एंड वी आर इवेलुएटिंग द डिस्कशन। हम इवेलुएट करते हैं कि डिस्कशन मीन्स का जो आउटकम है वो कैसा है। एट द एंड हमने उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या डिसाइड किया है। ठीक है। तो दीज आर द स्टेप। द फर्स्ट इज द प्लानिंग एंड द सेटिंग, क्या क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए और डेमोक्रेटिक, यानी कि ईच मेंबर हैविंग अ इक्वल चांस टू
share their views, share their ideas, okay, and it should be useful, okay. At the end, we have to evaluate the outcome. Now the journal instructions for the group discussion. Speak clearly, concise, and not repeat yourself. Speak clearly. You have to speak clearly. जो भी आप टॉपिक उन्हें बढ़ा रहे हो, जो भी आप टॉपिक उन्हें टीच कर रहे हो, या फिर जिसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको वो क्लियरली एक सिंपल लैंग्वेज में उन्हें एक्सप्लेन करना है. कंसाइज, स्मॉल वे में कंसिस्ट करना rather than the large way में. And you should not repeat yourself, okay? और again and again same topic बात नहीं करना. Speak oddly if you don't not understand, ask them to clearly in a polite manner. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स में से कोई एक पर्सन है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं लीडर हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ वी विल डिस्कस अबाउट द कोविड, ओके, मैंने आपको कहा कोविड में हम वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है. अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, पोलाइट वे में आप दोबारा से आपके इंस्ट्रक्टर को आप पूछ सकते हो. हैव टू स्पीक इन अ प्रॉपर टोन, नॉट बी हार्श. अगर आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव हो, यानी कि अगर मैंने कहा कि बहुत से पीपल्स बोलते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, और मैं भी इसके लिए एग्री हूँ कि वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, तो आपको अब पैनिक नहीं होना है. जो आज पता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बट अपनी बात को कहने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है. एक प्रॉपर टोन में आपको बात करनी है. अगर आपको किसी चीज़ को मना करना है दैट आई एम नॉट एग्री विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, देन आपको पोलाइट वे में ही बात करनी है. इफ यू डू नॉट स्पीक इन एन इंटेलिजेंट मैनर, अदर मेंबर assume that you are unintelligent, ठीक है. इफ यू डू नॉट स्पीक इन इंटेलिजेंट मैनर, इंटेलिजेंट मैनर का मतलब क्या है, whenever you have to speak in a concise way, in a very polite manner, यानी कि अपनी बात रखने का एक तरीका होना चाहिए आपके पास. अदरवाइज क्या होगा, another person are misunderstand you or misinterrupt you, okay. If a statement has to be the disagree, do it in a manner that tactfully, ठीक है. तो ये आपको ट्रैक्ट आना चाहिए कि अगर आप किसी स्टेटमेंट के लिए डिसएग्री हो तो आपको किस तरीके से उसे बोलना है. जैसे कि हम बोलते हैं, हम डायरेक्ट नहीं बोलते कभी कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन मैंने आज तक ऐसे ही देखा है, या मैंने आज तक अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है. बट आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो हमेशा आपको ये चीज़ जब भी हम कुछ डिस्कशन करते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सो दैट की कन्फ्लिक्ट्स ना हो. अवॉइड यूजिंग द टेक्निकल टर्म दैट आर नॉट अंडरस्टूड बाय द ग्रुप. ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड यूज नहीं करना जो ग्रुप को अंडरस्टूड ना हो. Cultural background of the individual will also play a role how they speak. Actually, the cultural background, for example, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका लैंग्वेज ऐसा होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि वो बहुत हरास वर्डिंग में बोल रहे हों, या फिर वो दे आर डिसएग्री और वो पैनिक हो गए हों, ठीक है. बट एक्चुअली उनका टोन ऐसा ही है, ठीक है. तो समटाइम कल्चर बैकग्राउंड ऑल्सो अफेक्ट जो हमारा लैंग्वेज है उसमें बहुत क्या करता है, इफेक्ट करता है. अंडरस्टूड, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते ही इसी तरीके से, ऐसे लगता है कि नहीं, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट, whether they are agree or disagree, if you don't understood, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनके बात करने का जो तरीका है, उस समय समझ में नहीं आता कि ये मीन्स एग्री हैं, डिसएग्री हैं, या फिर ये एंग्री हैं किसी चीज़ के लिए. तो समटाइम इट इज डिपेंड अपॉन द कल्चर बैकग्राउंड ऑल्सो, ओके. But according to me, whenever you are joined in any organization or any professional college, तो profession means होता है बच्चे, you have to maintain your professionalism, you know. And sometime we will discuss ये point इसके लिए भी कहा गया है, because when we are discussed with the community, not the teacher. अगर मैं being a
टीचर एक कम्युनिटी में से बात कर रही है, और कम्युनिटी पीपल दे आर मीन्स वो मुझसे बात करते हैं, उनका टोन थोड़ा हाई हो गया है या फिर उस तरीके से बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स इट डिपेंड अपॉन देयर कल्चरल बैकग्राउंड. Okay, so that particular condition we will handle in a very tactfully. Okay, advantages. What is the advantage of this group discussion? Active participation of the student. क्यों एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होता है ग्रुप डिस्कशन में? मैम क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल को चांस मिलता है बोलने का. ओके, तभी डिस्कशन पॉसिबल हो. every individual has to chance, also every individual should participate in a group discussion. अगर आप ग्रुप में बैठे हो और आराम चुपचाप से बैठे हो, then what is the benefit of the group discussion? ग्रुप डिस्कशन हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है. स्पीक अप, ओके, शेयर योर आइडियाज, डोंट थिंक यू आर रॉन्ग और राइट. जब छोटा बच्चा होता है ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी है, तो जनरली हम उनको बताते हैं, जब उन्हें लर्न करवाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि आपको सही आता है, गलत है, कुछ भी है आप शेयर करो. जब शेयर करोगे तब की थॉट प्रोसेस क्या होगी? रन करेगी, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी. अगर आप लगेगा कि अच्छा मुझे ऐसा लगता था, किसी और ने आंसर वही दे दिया, ठीक है, तो आपको ना इस चीज की हैबिट हो जाएगी. ग्रुप डिस्कशन करवाते इसलिए हैं सो दैट कि जो आपको फेयर है, ठीक है, किसको पब्लिक फोबिया होता है, स्टेज फोबिया होता है, वो बात ही नहीं करते किसी के सामने. उस सब चीजों से क्या होता है? हमें एक्सपोज करने के लिए, अपने आइडियाज को, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं. Every person having an equal chance to speak up regarding the topic. They have an means equal right to suggest to provide suggestion for the particular topic. Okay, motivate to students for the group activities and the cooperative tasks, because by the group discussion we have to complete the particular task. हमने at the end एक evaluation देना ना कि हम जो group discussion किया है वो उसका इवैल्यूएशन क्या आया, मतलब हमने एट द एंड उसका आउटकम क्या निकला है. ओके, सो वी हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट बाय द ग्रुप डिस्कशन. मोटिवेट टू लिसन अप, एट द सेम टाइम यू कैन स्पीक लाइक अ लीडर. तो जैसे कि एज अ लीडर, यानी कि टीचर आपसे बात कर रहा है, टीचर आपको टीच कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, एज लाइक योर लीडर आप क्या करते हो? स्पीकअप करते हो, शेयर करते हो अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को. ठीक है, student develop the critical thinking, analyzing, synthesizing, evaluating, inferring, problem solving. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट में. इट टीच स्टूडेंट नॉट टू एक्सेप्ट एनी आइडियाज ब्लाइंडली. ठीक है, कि किसी ने कहा ऐसा होता है, आपने कहा ओके ऐसा ही होता है क्योंकि टीचर ने कहा है तो होगा. जैसे जनरली क्या होता है, जब वाइवा में स्टूडेंट को कुछ पूछा जाता है कि ओके बट यू अंडरस्टैंड दिस वन, ये डेफिनेशन आपने कहाँ से ली है, तो स्टूडेंट का आंसर होता है मैडम ने लिखवाई थी, मैम ने ऐसा कहा था, मैम ने ये कहा था, मैम ने ये आंसर बताया था. तो ग्रुप डिस्कशन को बताता है बच्चे कि आपको ब्लाइंडली फेट नहीं करना है, आप जाके पढ़ो. You should not say like that कि आपके टीचर ने ऐसा कहा है. That mean आप completely depend हो टीचर पे, आप बुक नहीं खोलते, आप नेट नहीं देखते. Disadvantages is group discussion may go out of track. कई बार क्या होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आइडियाज होते हैं, ठीक है, फिर सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, तो जो टॉपिक होता है वो अपनी ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है. मतलब हम कहीं और डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो कहीं और चला जाता है. ठीक है, रिक्वायर्ड मोर स्पेस देन लेक्चर. अब जैसे लेक्चर से ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेक्चर में तो हम इस तरह से बैठे हुए होते हैं. ठीक है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं. So everyone having an equal chance to share their ideas. It is difficult to monitor the progress of the many small groups. ठीक है, अगर हम छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और उन सब में ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर द ग्रुप.
when dominant member are not controlled, it can be affect the other member participation. ये जनरली होता है कि जो डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा होता है तो होता है, क्योंकि उनको वो डोमिनेंट है, उनका नेचर है डोमिनेट करने का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अदर्स मेंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, परफेक्ट होते हैं, फिर वो शेयर नहीं कर पाते। दे आर थिंकिंग लाइक इन्होंने सुनना ही नहीं है, इन्होंने उसको गो थ्रू ही नहीं करना उसके बारे में, तो फिर मेरा क्या बेनिफिट है कहने का, या फिर मैं क्यों डिस्कशन करूँ। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। Understood group discussion? Yes, ma'am. Okay, now what is seminar? Pooja Karki. Yes, ma'am. What is seminar? Ma'am, seminar is basically a group of members. They come together to exchange views, या फिर जो भी कोई भी करंट प्रॉब्लम्स हो, या फिर खुद के एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई भी नॉलेज में जो अपग्रेड आया हो उसको शेयर करते हैं. Okay. So seminar meaning a meeting for the discussion or the training. Seminar में क्या करते हैं हम? Why we are conducting the seminar actually? आपने देखा होगा सेमिनार की इनविटेशंस आती हैं, हम सेमिनार अटेंड करते हैं, कंडक्ट भी कराते हैं। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर हमें सेमिनार में भी आइडियाज और व्यू ही शेयर करने हैं तो हम ग्रुप डिस्कशन में नहीं करते, हम सेमिनार क्यों करवाते हैं फिर? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. कौन सा एक्सपीरियंस? बताओ। आपने कभी कोई सेमिनार अटेंड किया है बच्चे? ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्कूल्स में, कॉलेज में, एनी सेमिनार? किसी ने भी नहीं किया है? सेमिनार अटेंड नहीं किया है कभी? कनुप्रिया? कनुप्रिया नहीं है। उजाला, सेमिनार अटेंड नहीं किया आपने कभी? मैम सेमिनार मैम यही किया था जो अभी हमारे कॉलेज में हुआ था, वेबिनार जो भी. कौन सा वेबिनार? मैम जो कोविड पे हुआ था. लास्ट मैम ईयर हुआ था बाकी जो? फेस टू. हाँ यस मैम. मैम लास्ट वैसे तो अलग से नहीं किया. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सेमिनार क्यों करवाया जाता है? हम डिस्कस भी तो कर सकते थे ना